Good morning, students. Let's see our another chapter from Honeydew, a short monsoon diary. Introduction देख लेते हैं. A short monsoon diary gives us a glimpse of the diary written and maintained by Ruskin Bond. A diary is a record of personal experiences written day after day over a long period of time. In his diary, Ruskin Bond wrote about the silent miracles of nature as the mountains receive monsoon showers. The monsoon season in Missouri begins around the last week of June and continues till the end of August. The cold rains are welcomed in October till the last darkest cloud in March, which renders the sky clear for the rainbow after it hills. तो अ शॉर्ट मानसून डायरी जो है वो एक डायरी रिटर्न है जो कि मेंटेन करके रखी थी रस्किन बॉन्ड ने. उन्होंने उसमें पूरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो रिकॉर्ड करके रखा था डे बाय डे का. और रस्किन बॉन्ड जो है वो इंडिया आए हुए थे और उन्होंने जो है मसूरी में जो है उस समय जो है डायरी लिखी थी. और उन्होंने जून से लेकर यानी जब मानसून सीज़न जब स्टार्ट होता है जून में मसूरी में, तो वहाँ से लेके जब कहाँ तक, तो अगस्त तक जब वो ख़त्म हो जाता है तो वहाँ तक उन्होंने जो है वो डायरी मेंटेन करके रखी थी. उसके बाद जब विंटर सीजन यानी कि कोल्ड रेन जब आती है अक्टूबर में, वहाँ से लेकर मार्च के एंड तक जो है उन्होंने डायरी को मेंटेन करके रखा था. कब तक? जब तक रेनबो जो है वो स्काई पे क्लियरली दिखाई नहीं दे जाता, तब तक उन्होंने एक डायरी मेंटेन करके रखी थी कि हर दिन जो है किस तरह को जो है एटमॉस्फेयर जो है वो दिखता था. The lesson gives us a glimpse into the diary of Ruskin Bond, and the first day began talked about in June 24, the time around which monsoon begins, as is written. June 24 is the first day when the mist appeared. The writer calls it strange how all the birds suddenly went silent as a cloud of teeny water droplets climbed up the hill. He tries to explain why the mist is called melancholy by giving two reasons. First, it covers up the mountains and hides the serene view. Second, it silences the birds, hereby bringing sadness. The right how only an hour before the mist appeared, trees could be heard ringing with the creeping of the birds, but now it was so still and silent that he called the forest deathly, as it felt that it was almost midnight. The writer could hear Biju calling for his sister but couldn't see him through the mist. He could anticipate that Biju was running about on the hillside. तो डायरी की जो शुरुआत जो है वो 24 जून से होती है जब मानसून जो है स्टार्ट होता है. और 24 डेट को वो क्या लिखते हैं रस्किन बॉन्ड, तो वो लिखते हैं कि सडनली जो है ओस गिरना शुरू हो गया था. और ओस गिरने की वजह से क्या है कि बर्ड्स जो है वो साइलेंट हो गए थे, क्योंकि क्लाउड जो है उनमें टीनी वाटर जो है वो भर चुका था. वो धीरे धीरे जो है अब गिरना स्टार्ट हो गया था हिल्स पर. और उसको उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मेलनकली बोला. कि उसके दो रीज़न थे. पहला कि उसने पूरे माउंटेन को जो है कवर कर लिया था, और दूसरा ये था कि जो बर्ड्स जो थे वो बिल्कुल साइलेंट हो गए थे. वो कैसा लग रहा था जैसे कि कोई सैडनेस हो गया हो. यहाँ पे एक और चीज़ वो लिखते हैं कि कुछ घंटों बाद जो है मिस्ट जो है वो वापस अपीयर हुआ. ट्रीज जो है जिनमें बर्ड्स पहले गा रहे थे बैठकर, अब वो बर्ड्स जो है वो बिल्कुल साइलेंट हो गए. तो फॉरेस्ट कैसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल डेथली हो. और ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुकी थी, यानी कि आधी रात होने वाली थी. और राइटर जो है वो सुन पा रहे थे कि बिज्जू जो है अपनी सिस्टर को बुला रहे थे, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पा रहे थे क्योंकि इतनी ओस गिरी हुई थी और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी. और बिज्जू जो है वो हिल साइड की ओर जो है जा रहे थे उस समय. On the 25th day of June that year, the hills witnessed
some early monsoon rain, which brought with itself warmth and humidity. It's different from the showers the hills receive or years that cools the environment at such high altitude. The plants also knew it very well that the monsoon had arrived as the first cobra lily of the season plucked its head, making its way among the fern as the writer walked till the bank and the post office. Upon being asked by a schoolboy, the author described the hill station and valley as a paradise that might have been. It means that during monsoon season, the hill station and valley must feel heavenly, which is why it has been referred as a paradise. तो 25 जून को जो है एक मानसून रेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी और ह्यूमिडिटी जो थी और वार्मथ जो था वो लेके आ चुकी थी और साथ ही साथ जो है हिल्स पर जिस तरह से बारिश हो रही थी वो एनवायरनमेंट जो है बहुत ही अच्छा दिख रहा था और ठंडा दिख रहा था वातावरण उस समय और प्लांट्स जो है वो भी खिल चुके थे उस समय। वो फर्स्ट कोबरा लिली फ्लावर जो होता है वो भी खिलता हुआ नज़र आ रहा था और राइटर जो है वो उस समय नदी के किनारे घूम रहे थे और वो पोस्ट ऑफिस के उधर से निकले और सडनली उन्होंने स्कूल बॉय को देखा। उन्होंने ऑथर ने जो है एक चीज़ डिस्क्राइब की वहाँ पे कि वो जो पूरा एरिया जो है हिल स्टेशन को कैसा दिख रहा था, पैराडाइज जैसा दिख रहा था, एक स्वर्ग जैसा दिख रहा था वो, क्योंकि जब मानसून सीज़न जब स्टार्ट होता है तो हिल स्टेशन जो होता है, वैली जो होती है वो बिल्कुल एक स्वर्ग जैसी फील होती है, इसलिए उन्होंने उसको पैराडाइज बोला। क्योंकि जब बारिश गिरती है और जिस तरह का नेचर हो जाता है ग्रीनली तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा दिखता है। June 27th, the rain brought with itself the news of the arrival of a few occasional visitors like the leopard and quite a few thousand leeches. On the afternoon of the day before, the leopard picked up a dog from near the servants' quarter which was below the school. तो 27 ऑफ जून को उन्होंने जो डायरी लिखी उसमें उन्होंने क्या लिखा कि बारिश जो है कुछ नए विजिटर्स को भी लेके आई थी। तो कौन थे वो? तो कुछ एक तो लेपर्ड था और दूसरे कुछ थाउजेंड्स ऑफ लीचीज, जो छोटे छोटे जो कीड़े जो होते जो खून चूसते लीचीज वो थे। और दोपहर का समय हो चुका था और लेपर्ड जो है एक डॉग को जो है वो पकड़ कर ले गया, जो कि सर्वेंट का क्वार्टर था उसके बाजू में से वो डॉग को पकड़ के ले गया और जो कि स्कूल के बिल्कुल बाजू में ही था। नॉट ओनली दिस, इन द इवनिंग इट एम्बूस्ड वन ऑफ बिज्जूज काउस बट ran away as soon as बिज्जूज मदर केम क्रॉसिंग। तो खाली ऐसा ही नहीं, दोपहर के टाइम पे जब बिज्जू की काऊ जो थी उसके ऊपर जब वो लेपर्ड अटैक करने आया, लेकिन उस बिज्जू की मम्मी ने जब जोर से चिल्लाना शुरू किया तो वो वहाँ से भाग गया। With the leeches, on the other hand, the writer says that he must get used to losing a little blood to them every day. लेकिन लीचीज क्या करती थी? अगर हम राइटर यहाँ पे एक और चीज़ कही कि लीचीज जो है वो उनका धीरे धीरे खून जो है हर एक दिन जो खून है वो कम किए जा रही थी। He mentions a few other names that arrived with the rain, such as the scarlet minivids, bright red birds that look like a cuckoo, however their female counterparts are yellow in color. तो खाली यही नहीं, लेकिन को कुछ दूसरे भी नाम उन्होंने दिए जो कि बारिश के समय पे जो है कुछ एक अलग टाइप के जो बर्ड्स थे वो भी देखने को मिल रहे थे। रेड बर्ड्स भी देखने को मिल रहे थे जो बिल्कुल कुक्कू जैसे दिख रहे थे और जो है येलो इन कलर में दिख रहे थे वो। दे मूव स्विफ्टली एंड लाइटली अमंग द लीव्स गिविंग द अपीयरेंस ऑफ ब्रिलियंट ज्वेल्स अराउंड देम। तो वो क्या है, यहाँ से वहाँ जो लीव्स जो थे उनके वहाँ पे वो मूव किए जा रहे थे और वो कैसे दिख रहे थे, जैसे कि कोई
गहने जो हो, ब्रिलियंट गहने जो हो, कहते हैं ना हम कि गहने हो वो किसी के आसपास हो, वैसा वो फील हो रहा था उस समय, क्योंकि जिस तरह का कलर जो था बर्ड्स का वो बहुत ही डिफरेंट दिख रहा था. दिस बर्ड्स आर सो ब्राइट इन देयर कलर दैट regardless of how leafy the tree is, it is difficult to them to hide themselves. तो उनका कलर इतना ब्राइट था कि जो ट्री पे जो लीव्स जो थे, पत्ते जो थे, वहाँ पे उनको बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था हाइड होने में, उनको छुपने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उनका कलर इतना ब्राइट था वो आसानी से दिख जा रहा था. However, sometimes they manage to go unnoticed by remaining absolutely silent. तो कई बार जो है उन्हें मैनेज करना पड़ता था साइलेंट रहने के लिए, ताकि कोई भी उन्हें जो है देख ना पाए. A bird species named drongos also comes along quite unnecessarily aggressive in nature. They chase these minivates away. तो एक बर्ड के स्पीसीज जो था जिसका नाम था ड्रोंगोस, वो भी जो है वहाँ पे आ चुका था, और फिर वो जो है नेचर से मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि नेचर जिस तरह से दिख रहा था बारिश होने की वजह से, तो वो बर्ड्स वहाँ पे आ चुके थे और वो लोग जो है मिनी वेट्स को जो है वहाँ से हटा रहे थे. During this time, a tree creeper climbs up the trunk of the oak tree carrying insect with it. The rainy season ensures that there is no scarcity of food for the insect-eating birds. तो जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे ट्री क्रीपर्स जो क्लाइम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे ओक ट्री पर, तो वो इंसेक्ट जो है उनको कैरी करके ले जा रहे थे. और रेनी सीजन में एक चीज़ जो इंश्योर थी वो क्या थी कि खाने की कहीं पे भी कमी नहीं थी, और इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स जो थे वो वहाँ पर देखने को मिल रहे थे. The author wrote on August 2nd how the rain had been falling noisily on the Caribbean tin roof. There was no storm or thunder, just the smooth falling of the tropical raindrops. तो 2 अगस्त को जो है राइटर ने एक चीज़ लिखी कि बारिश जो है बहुत ज़ोरों से गिर रही थी, और टीन का रूफ था जहाँ पे वो रुके हुए थे, वहाँ पे ऊपर जो है टीन का रूफ था, और स्टॉर्म तो नहीं था, कोई इसी तरह का कोई ठंडा नहीं था, लेकिन बारिश की बूंदें जिस तरह से गिर रही थी वो आवाज़ आराम से सुनी जा सकती थी. इट मेड ईजियर फॉर द ऑथर टू लाई अवेक, हाउएवर एट द सेम टाइम इट डिडंट प्रिवेंट हिम फ्रॉम फॉलिंग अस्लीप. तो वो जिस तरह से बारिश जो हो रही थी वो ऑथर को जो है जागने पर मजबूर कर दे रही थी, और वो उसी टाइम पर जो सेम टाइम पर वो सोने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ पा रही थी. He explains how the sound of rain creates a nice atmosphere for reading with the rain outside and silence within. तो यहाँ पे ऑथर एक और चीज़ कहते हैं, उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी एक्सप्लेन की है कि जो बारिश का जो साउंड जो था ना, आवाज़ जो थी, वो एक तरह से इतना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा था रीडिंग करने के लिए रेन को बाहर से, लेकिन अंदर से ही वो साइलेंट भी फील कर रहे थे. यानी कि जब बारिश होती है तो हम कितने आराम से बैठ के जो है बारिश का पूरा लुत्फ उठाते हैं. तो वो चीज़ वो जो ऑथर जो है उसको रीडिंग किए जा रहे थे, उसको वो जो नेचर इतना अच्छा लग रहा था कि वो उसको बार बार देखे जा रहे थे. He mentions the usual leaks from the tin roof and how they give you the feeling of having touched you by keeping your untouched. तो एक और चीज़ उन्होंने बताई कि जो टीन का रूफ जो था वहाँ से बारिश का पानी जो है बूंदे जो है वो गिरे जा रही थी, तो वो एक तरह की ऐसी फीलिंग दी थी जैसे कि आपने किसी अनटच को, किसी अनछुए को जो है छुआ हो, इस तरह की जो है उस समय वो फीलिंग्स आ रही थी. As the rain stops on the 3rd day of August, the clouds began to separate, giving away to the sun on the writer's left. तो 3rd अगस्त को क्या हुआ, बारिश रुक गई, आसमान बिल्कुल साफ हो गया, अब सूरज जो है वो दिखने लगा था. A woman could be seen cutting sticks into smaller pieces and the tinkle of cow bells could be heard. तो
कुछ वुमेन्स दिख रही थी जो कि स्टिक्स जो है उनको काट रही थी स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में, और वहाँ पर कुछ काव दिख रही थी जिनके गले में बैल लगी थी और वो आवाज़ कर रहा था, वो सुना जा सकता था। अ काव सिटिंग ऑन द ओक ट्री shook itself to get away with the raindrops on its feathers as it cawed unhappily, and water dripped from the linking drain pipe that carried off rainwater from the building. तो बारिश की बूंदें जो है ओक ट्री के उधर जो है काव जो है वहाँ पे वो बैठी हुई थी, और वो जो है अपने आप को बारिश की बूंदें जो छोटी छोटी जो बारिश की बूंदें उस समय गिर रही थी, तो वो उसको जो है उससे बचने के लिए वो ओक ट्री के नीचे थी। और एक और चीज़ जो सुनाई दे रही थी वो क्या थी, जो देख सकते थे वो ये थी कि वाटर ड्रिप्ट हो रहा था लीकिंग ड्रेन पाइप्स में से, तो वहाँ से वो कैरिड होता वो रेन वाटर जो है वो सीधा बिल्डिंग से नीचे आ रहा था। As everything settled, the pure song of the whistling thrush could be heard like a dark, sweet secret from the depth of the valley. तो एक और चीज़ जो सुनने को मिली वो क्या थी कि जब सब कुछ सेटल्ड हो गया तो एक बहुत ही प्योर सॉन्ग सुनने को मिल रहा था। विस्लिंग जो है वो सुनने को मिल रही थी, और वो कैसी लग रही थी, जैसे कि कोई डार्क स्वीट सीक्रेट हो, और वो जो है वैली में से, डीप वैली में से सुनाई दे रहा हो। By August 12th, the hills had been experiencing continuous rain and permanent mist. 12 अगस्त को क्या हुआ, 12 अगस्त को के हिल पर जो है एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस होने लगा कि कंटिन्यू जो बारिश जो है वो चालू थी, और परमानेंट मिस्ट यानी कि परमानेंट जो है वो ओस छाई रही वहाँ पर। They hadn't seen the light of the sun for about a good stretch and of 8 to 9 days. तो करीबन 8 से 9 दिनों तक जो है सूरज की रोशनी जो है वहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी थी। एवरीथिंग इन द सराउंडिंग वॉज साइलेंटली वेट एंड मोशन। तो चारों जगह, पूरी जगह जो है, चारों ओर की जगह जो है पूरी की पूरी गीली और मॉइस्चर से भरी हुई थी। वन कुड नॉट गो एनीवेयर, कोई भी कहीं नहीं जा सकता था। The only option was to move to and fro in the room or look out of the window at a few umbrellas moving suddenly. और आपके पास एक ही ऑप्शन था, अगर आपको यहाँ से वहाँ मूव होना है रूम में से, तो क्या है कि आपको विंडो में से झांकना रहेगा, लेकिन आपका अम्ब्रेला आपको चाहिए रहेगा क्योंकि बारिश बहुत ही तेज हो रही थी। The author is pleased that it wasn't cold rain. तो ऑथर यहाँ पे एक और चीज़ जो बताते वो ये है कि ये कोल्ड रेन नहीं थी। The vegetation could be seen growing luxuriantly and abundantly on the hillsides as the last monsoon flowers began to blossom. तो वेजिटेशन यानी कि जो है खाने की चीज़ें जो है वो अब जो है धीरे धीरे खिलना स्टार्ट हो गई थी, उगना स्टार्ट हो गई थी। और साथ ही साथ जो है हिल स्टेशन में लास्ट मानसून में कुछ फ्लावर्स जो थे वो भी ब्लॉसम करने स्टार्ट हो गए थे। A few flowers that began to appear are wild balsam, dahlias, begonias and ground orchids. तो कुछ फ्लावर्स ऐसे थे जिन्होंने जो है अपीयर होना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि खिलना स्टार्ट कर दिया था। उनमें से कौन सा था, तो एक तो वाइल्ड बल्सम था, डेलियास था, बेगोनियस था और ग्राउंड ओचिड था। ओचिड्स जो फ्लावर जो आता है, जो खिलता है, जिसके अंदर छोटे छोटे जो है एक तरह से बीज टाइप होते हैं, बहुत ही अलग दिखता है वो चीज़। August 31st, the last day of the month, also marked the nearing end of the monsoon season. तो 31st जो अगस्त जो था, 31st लास्ट डे था मंथ का, तब जो है एक चीज़ जो देखने को मिल रही थी वो था कि अब ये जो है एंडिंग था मानसून सीजन का। The monsoon vegetation growth had reached its peak by that time, and the color changing of the seeds of the cobra lily to red hinted at the end of the rainy season too. तो मानसून में जो वेजिटेशन जो है वो ग्रोथ हो रहे थे, और साथ ही साथ एक और चीज़ जो चेंज होने को मिल रही थी वो क्या थी कि जो सीड्स जो थे कोबरा लिली फ्लावर्स के वो रेड में कन्वर्ट हो रहे थे, रेड कलर में कन्वर्ट हो रहे थे, क्योंकि रेनी सीजन जो है अपने
आखिरी चरणों पे था इसलिए। एज द नेक्स्ट फ्यू डेज पास, कुछ दिन निकलने के बाद, द फ्लावरलेस प्लांट्स or the ferns will begin turning yellow against their present fresh green color as they stand firm and upright. तो कुछ दिन निकलने के बाद जो फ्लावरलेस जो प्लांट्स जो थे वो अब धीरे धीरे जो येलोइश कलर में जो है बदलने लगे और फ्रेश ग्रीन कलर में वो बिल्कुल अच्छे दिख रहे थे। He mentions how the ground orchids, white butterfly orchids and mawledy slipper made the grassy slopes of land over look fashionable। तो वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड जो थे और ग्राउंड ऑर्चिड जो थे उन्होंने पूरे ग्राउंड को जो है फैशनेबल बना दिया था और पूरा का पूरा ग्राउंड जो था वो कैसा दिख रहा था, तो ग्रासी स्लोप जैसा दिख रहा था कि उस पर घास उगी हुई है, वो बिल्कुल स्लोप जो है स्मूथ दिख रहा था। Furthermore, the wild dahlias, red, yellow and margarita turned their heads back towards the narrow opening in the rocks where they had taken hold। साथ ही साथ जो है वाइल्ड दहलियास जो था वो रेड, येलो और मैग्नेटा कलर में दिख रहा था और वो अपना सर जो है बाहर निकाल के खिल रहे थे और एक तरह से जो है रॉक जो है उन्होंने उसको होल्ड करके रखा हुआ था, उस तरह से दिख रहा था। The snake and rodents that have come out of their holes and burrows in huge numbers took shelter in roof, attics and godowns। तो अब क्या हुआ कि बारिश होने की वजह से जो सांप जो है और बाकी के जो छोटे छोटे जानवर जो थे जिन्होंने जो कि बिल में रहते थे उनके वहाँ पर जो है पानी भर जाने की वजह से जो है वो लोग अपने होल्स में से निकल के जो है उन्होंने कहाँ घर बना लिया, तो उन्होंने शेल्टर का जो रूफ होता है वहाँ पर और गोडाउन्स में जो है अपना घर बना लिया। A small insectivorous mammals resembling a mouse, namely a shrew with quite a weak eyesight, moved about clumsily in the room. It acted as a source of entertainment for the children. Their grandmother warned them not to kill it because chachundars, as they are called in Hindi, are known to bring money and prosperity। तब क्या हुआ कि कुछ माउस जैसे जो है मैमल्स जिनको छठुंजर जो कहते हैं हम लोग, तो वो जो है घरों में दिखने लगे, यहाँ से वहाँ मूव करने लगे और बच्चों के लिए वो एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया बन गए। तो उनकी ग्रैंड मदर ने उनको वार्म किया बच्चों को कि तुम्हें इनको नहीं मारना है क्योंकि छछुंदर जो है, जिन्हें हिंदी में छछुंदर कहते हैं, वो जो है मनी और प्रॉस्पेरिटी जो है वो लेके आते हैं, यानी कि वो ब्लेसिंग्स देते हैं ऐसा। द ऑथर जोक्स अबाउट इट एंड सेज दैट ही श्योरली रिसीव्ड अ चेक इन हिज मेल। तो ऑथर जो है मस्ती मस्ती में एक चीज़ कहते हैं कि श्योरली जो है उन्हें एक मेल में जो है एक चेक मिलेगा ज़रूर, क्योंकि वो जो है छछुंदर जो है वो पैसे लेके आता है। ऑल्दो नॉट अ हर्ज अमाउंट बट वेलकम एनीवे। खाली ऐसा ही नहीं सिर्फ कि एक हर्ज अमाउंट नहीं, लेकिन एक वेलकम वे में तो ज़रूरी मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, कि इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं मिलेगी चेक में, लेकिन वेलकम एनीवे, तो यानी छोटा बहुत तो मिल ही जाएगा मुझे। द मंथ ऑफ अक्टूबर टुक द माउंटेन स्ट्रेट इनटू विंटर रेन एज इट मार्क द एंड ऑफ द एक्सटेंडेड मानसून सीजन। तो अक्टूबर का टाइम आते आते जो है माउंटेन पे जो है विंटर रेन होने लगी और वो किस तरह से मार्क कर रही थी कि अब ये जो है मानसून सीजन का जो है एंड होने आ गया है। द हायर एल्टीट्यूड्स वर कवर्ड विथ स्नो। अब क्योंकि मानसून सीज़न ख़त्म होने आ गया था, अब धीरे धीरे जो है वो स्नो में कन्वर्ट होता जा रहा था। अब स्नो जो है वो गिरना स्टार्ट हो गई थी। On the 3rd of October, the sky and hills were bathing in beautiful golden light after experiencing a hailstorm an evening before।
अब 3 अक्टूबर को क्या हुआ कि जो बादल, जो आसमान जो था और हिल्स जो था, अब उस पर जो है गोल्डन लाइट यानी कि हेलस्टॉर्म जो है वो गिरना स्टार्ट हो गया था। हेलस्टॉर्म यानी कि जो हम कहते हैं ना कि बर्फ़ के जो ऊपर से गोले जो आते हैं जो, वो गिरना स्टार्ट हो गए थे। इन द मंथ ऑफ जनवरी द हिल्स रिसीव विंटर रेन्स, और जनवरी का मंथ आते आते हिल्स पर जो है विंटर रेन्स गिरना स्टार्ट हो गई थी, यानी कि बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो गई थी। द ऑथर टॉक्स अबाउट द 26th day of January when he was all alone in the quiet and still house। तो ऑथर जो है एक और बात बताते हैं कि 26th डे जनवरी का, उस समय वो बिल्कुल अकेले थे और वो घर के अंदर ही थे। उनके जो फ्रेंड जो थे, जो उनके संग आए हुए थे, वो चले गए थे। द फ्रेंड हु accompanied him a while ago had also gone। तो उनके फ्रेंड जो उन्हें कंपनी देने आए थे वो फिर वहाँ से वापस चले गए थे। He mentions how it was very lonely and quiet as he sat in complete silence experiencing the silence within। यहाँ पे एक और चीज़ वो मेंशन करते कि वो बहुत ही लोनली यानी कि अकेला फील कर रहे थे, और वो चुपचाप बैठे हुए जो है कंप्लीट साइलेंस एक्सपीरियंस कर रहे थे। बिल्कुल अपने अंदर भी वो जो है साइलेंस फील कर रहे थे, और बाहर जो है बिल्कुल एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल साइलेंस ही दिख रहा था। ही वॉज सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ द रेन, द स्लो एंड जेंटल मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, लेमन्स and roof as it drummed on already wet glass and window panes। तो अब धीरे धीरे बारिश जो गिर रही थी, विंटर रेन, यानी कि जैसे जैसे अब विंटर आना स्टार्ट हुआ तो वो जो रेन है जाते जाते जो है बारिश करती जा रही थी, तो वो बिल्कुल जो है धीरे गिर रही थी, और जेंटल मूवमेंट दिख रहा था। पानी जो है वो लीव्स के ऊपर दिख रहा था, रूफ के ऊपर दिख रहा था गिरता हुआ, और वो जो धिलास जो था, धेलियास, उसको वो गीला करता जा रहा था। विंडो के पेन्स जो यानी विंडो पैनल्स जो होता है कि विंडो के ऊपर का जो पूरा का हिस्सा होता है वो भी धीरे धीरे अब वो भीगता जा रहा था। द मिस्ट कवर द हाउस जेंटली इन इट्स डार्कनेस, और धीरे धीरे जो ओस जो है वो बिल्कुल कवर्ड हो चुकी थी घर के आसपास में, और वो बिल्कुल अंधेरा जैसा दिख रहा था। एज द ऑथर स्टूड स्टिल नियर द विंडो, और ऑथर जो है वो विंडो के पास खड़े थे वहीं पर। द रेन स्टॉप्ड एंड शावर्ड अगेन, तो बारिश रुकी और वापस से वो स्टार्ट हो गई। ही मेंशंस दैट द ट्रीज वर नाउ ग्रे एंड नो लॉन्गर ग्रीन, थ्रेटनिंग हिम विथ देयर लोनलीनेस। कुछ चीज़ उन्होंने मेंशन की कि ट्रीज़ जो है वो अब ग्रे कलर के हो गए थे, अब वो बिल्कुल भी ग्रीन नहीं रहे, और एक तरह से वो उनको जो है डरा रहे थे उनके अकेलेपन की वजह से। नेक्स्ट ही राइट्स अबाउट लेट मार्च दैट मार्क द एंड ऑफ विंटर सीजन। और मार्च का जो लेट मार्च यानी कि जैसे जैसे मार्च ख़त्म होने आ रहा था वैसे वैसे विंटर सीजन जो था वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। ही रिकॉर्डेड हैविंग सीन द ब्लैकेस्ट एंड डार्केस्ट क्लाउड रेस्टिंग ओवर मसूरी। तो यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने रिकॉर्ड जो की वो ये थी कि वो देख पा रहे थे कि एक ब्लैकेस्ट और डार्केस्ट क्लाउड जो है वो मसूरी के ऊपर जो है वो रेस्ट कर रहे थे, कि बिल्कुल छाए हुए थे। इट पोर्ड हेल दैट लुक लाइक मार्बल्स फॉर अबाउट 30 मिनट्स। तो हेलस्टॉर्म यानी कि जो ओले जो गिरते हैं उन्होंने पूरा का पूरा मसूरी को जो है वो वहाँ पर घेर लिया था, और वो कैसे दिख रहे थे, मार्बल्स की तरह दिख रहे थे बिल्कुल। 30 मिनट्स तक वो हेलस्टॉर्म जो है वो गिर रहा था। ही रिवेल्स हाउ देयर इज़ नथिंग लाइक अ हेलस्टॉर्म दैट क्लियर्स द स्काई। और एक और चीज़ जो रिवेल करते हैं वो यहाँ पे जो बताते हैं वो कि और कुछ नहीं, आसमान को साफ़ करने के लिए हेलस्टॉर्म जो है उसने बिल्कुल आसमान को साफ़ कर दिया था। He mentions that even as he was writing his diary, a rainbow was in its formation। एक और चीज़ उन्होंने मेंशन की कि जब वो डायरी लिख रहे थे तो रेनबो जो था वो स्काई पर जो है आराम से दिख रहा था, एक उसने अपना फॉर्मेशन बना दिया था। तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी जो है अ शॉर्ट
डायरी ऑफ मानसून वो यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।